Good morning, students. Today we are going to discuss your new chapter, that is control and coordination. So, this is the mind map of control and coordination chapter. So, students, first of all, you should be clear with the term control and coordination. So, what is coordination before proceeding towards the chapter? What is coordination? Coordination is the when you perform any activity in an orderly sequence. It is the orderly working of different but interrelated parts so as to perform one or more activities. जब आप एक या एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ एक साथ करते हैं तो कोऑर्डिनेशन कहते हैं. कोऑर्डिनेशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डांस. वेन एवर यू डांस, आप बहुत सारे मोमेंट एक साथ करते हैं तो वो कोऑर्डिनेशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. And control is power of restraint and regulation by which something can be started, slowed down and stopped. देखो, हमारी बॉडी की वेरियस एक्टिविटीज़ को ब्रेन कंट्रोल कर रहा है. दैट इज कंट्रोल. Talking about the stimulus. What is stimulus? The changes in the environment to which living organisms respond and are called stimulus. कोई भी चेंज होता है एनवायरनमेंट में, चाहे वो ठंड हो, गर्मी हो, बिजली का झटका हो, मतलब कोई भी एक्सटर्नल एजेंट, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कोई भी एक्सटर्नल एक्शन, उसको स्टिमुलस कह देंगे. और आपका रिएक्शन उस एक्शन की तरफ उसका रिस्पॉन्स होगा. तो स्टिमुलस में क्या आ सकता है? एग्जाम्पल आ सकते हैं हीट की, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, प्रेशर, ग्रेविटी, वाटर एट्सेट्रा. ये सब क्या है? ये स्टिमुलस है. ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि जिसके वजह से ही रिस्पॉन्स जनरेट होता है. For a proper response to a stimulus, many organs in the body should work together. The working together of various organs in organism to produce a proper response to a stimulus is called coordination. अब एनिमल्स और प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अलग अलग तरह से होती है. इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. नर्वस सिस्टम क्या करता है? बॉडी के ऑर्गन्स, बॉडी के पार्ट्स को, मशीनरी को, बॉडी के ऑर्गन्स काम कैसे करते हैं उसको कंट्रोल करता है. एंड एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोनल सिस्टम को कंट्रोल करता है. In plants, control and coordination is done by chemical substances called plant hormones. और plant hormones के लिए एक और term है हमारे पास जिसे हम phytohormones कहते हैं. Now talking about coordination in animals. In animals, control and coordination is done by the nervous system and endocrine system. The nervous system consists of brain, spinal cord and nerves. So first we will talk about the receptors. We will discuss this brain, spinal cord and nerves. उससे पहले some basic terminology. उससे पहले रिसेप्टर्स के बारे में, आपने स्टिमुलस के बारे में जान लिया. अब थोड़ी सी डिटेल्स रिसेप्टर्स के बारे में कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं. रिसेप्टर्स आर द सेंस ऑर्गन विच रिसीव द स्टिमुलाई एंड पास द मैसेज टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड थ्रू अ सेंसरी नर्व्स. ठीक है, तो रिसेप्टर क्या है बच्चे? एक्चुअली ये जो नर्व सेल के नर्व एंडिंग्स होते हैं वो रिसेप्टर्स होते हैं. तो कितने तरह के रिसेप्टर्स होते हैं? फोटो रिसेप्टर्स, फोनो रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, गस्टेटरी रिसेप्टर्स एंड टेंगो रिसेप्टर्स. सबको करेंगे वन बाय वन डिस्कस. Receptors are the sense organs which receive the stimuli and pass the message to brain or spinal cord through the sensory nerves. So what are the photoreceptors? Photoreceptors are present in the eyes to detect light. Word photo से ही clear है कि ये eyes में present होगा. Then phonoreceptors. Phone term use किया जाता है hearing capacity के लिए, phone ear के लिए. So phonoreceptors present in the ear to detect the sound. Olfactory receptors in the nose to detect the smell. Gustatory receptors in the tongue to detect the taste. And tango receptors present in the skin to detect the touch. तो ये सभी सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट हैं डिफरेंट रिसेप्टर्स. Then next is effectors. Effectors are the muscle and glands which respond to the information from the brain and spinal cord through the motor nerves.
सो इफेक्टर वो मसल्स होती हैं बच्चे, वो इफेक्टर मसल्स ही होती हैं जिसकी वजह से स्टिमुलस का रिएक्शन एक बॉडी देती है। जैसे मान लो आपने अगर किसी हॉट ऑब्जेक्ट को आपने टच किया है तो वहाँ से सेंस परसेप्शन स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के ले जाता है और ब्रेन वहाँ से मोटर नर्व वहाँ से मैसेज वापस लेके आती हैं और इफेक्टर मसल तब वहाँ पे रिएक्ट करती है। ये रिफ्लेक्स सेक्शन में हम पूरा कंप्लीट करेंगे इसको। Sensory nerves are nerves which carry information from receptors to brain and spinal cord. Motor nerves are nerves which carry information from brain and spinal cord to the effector. बच्चे effectors में muscles और glands आ जाते हैं। muscles ही response show करते हैं ना, तो actually में action muscles ही करते हैं हमारे, तो इसलिए effectors में muscles आ जाते हैं and nerves भी आ जाते हैं। Now talking about the human nervous system. Human nervous system consists of central nervous system and peripheral nervous system. ये मेनली दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। एक सेंट्रल, देखो एक स्फेयर होता है, स्फेयर का एक सेंटर होता है और उसके किनारे को हम पेरिफेरी बोलते हैं। इसी तरह से नर्वस सिस्टम भी है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बच्चे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक ब्रेन होता है, एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। आज हम इसी को ही करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। And peripheral nervous system consists of cranial nerves arising from the brain and spinal nerves arising from the spinal cord. ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। सो आज के लिए हम करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Now talking about the central nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बात करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो मेनली तो कैटेगराइज होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, और फर्दर फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये दो में डिवाइड होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। लेकिन ये आपको इतना डिटेल में नहीं है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में से क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स इसी के बारे में पूछा जाएगा, जो आपको सिर्फ तभी क्लियर होंगी जब आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर क्लियर होगा। अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वही करेंगे, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो ऑब्वियसली हम ब्रेन का स्ट्रक्चर भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है ब्रेन। तो ब्रेन के पीछे सबसे अपर पोर्शन है स्कल। ब्रेन किसके अंदर इनक्लोज होता है? स्कल के अंदर। स्कल इज द हार्डर कवरिंग ऑफ द ब्रेन। तो ये स्कल को ही हम क्रेनियम बोलते हैं। स्कल एंड क्रेनियम वन एंड सेम थिंग। तो क्रेनियम से जो नर्व निकलती हैं उसको क्रेनियल नर्व बोलते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलती हैं उसको स्पाइनल नर्व बोलते हैं। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स जो है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, लेकिन क्रेनियम और स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो ब्रेन इज एनक्लोज्ड इन द क्रेनियम और स्कल। तो बच्चे जब स्कल और ब्रेन दोनों के बीच में, अब देखो ब्रेन क्या है? डेलिकेट पोर्शन है, और स्कल क्या है? आपका हार्ड पोर्शन है। तो जब भी किसी हार्ड पोर्शन के अंडर कोई डेलिकेट पोर्शन होता है तो वहाँ पे इंजरी होने का खतरा रहता है। तो नेचर ने इसको ऐसा बनाया कि ब्रेन और स्कल के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि शॉक को ऑब्जॉर्ब करता है, ताकि शॉक ऑब्जॉर्ब हो सके और ब्रेन को स्कल की वजह से कोई इंजरी ना हो। नाउ दिस इज़ द डायग्राम विच शोज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। और ये भी बच्चे सेक्शनड स्ट्रक्चर है। ब्रेन के डायग्राम को कट कर दिया गया है, ब्रेन के स्ट्रक्चर को कट कर दिया गया है। तो ये एक सेक्शन आपको LS लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपको नज़र आ रहा है। तो बच्चे ब्रेन मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, cerebrum, thalamus and hypothalamus. Midbrain is simple midbrain, and hind brain also consists of 3 parts, that is pons, medulla oblongata and cerebellum. अब हम इन सब parts को one by one discuss करेंगे. Now this is the diagram which explains about the parts of brain. Then now what is cerebrum आपको पता है फोर ब्रेन का पार्ट है और सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। cerebrum also known as the telencephalon, ये बिगेस्ट पार्ट है, मेक्स अप 85% ऑफ द ब्रेन्स वेट।
कंट्रोल करता है बच्चे वॉलेंट्री मसल्स को। वॉलेंट्री मसल्स यानी कि वॉलेंट्री मसल्स कौन से मसल्स होते हैं? वो मसल्स जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। देखो, एक होते हैं वॉलेंट्री मसल्स, एक होते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स जैसे हाथ के मसल्स, हैंड्स के मसल्स आपके कंट्रोल में है ना, आप जब चाहे हैंड का फिस्ट बना सकते हैं, जब चाहे हैंड को ओपन कर सकते हैं, ये वॉलेंट्री मसल हैं। और इनवॉलेंट्री मसल्स कौन से होते हैं या नॉन वॉलेंट्री मसल्स कौन से होते हैं? जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, जैसे कि हार्ट बीट, हार्ट के मसल, इसोफेगस, ये सब आप चाहेंगे तभी थोड़ी ना डाइजेशन में हेल्प करेंगे, तभी थोड़ी ना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होंगे। वंस यू ईट द फूड, उसके बाद वो अपने आप ही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होके एसोफेगस से जाएगा, तो वो इनवॉलेंट्री मसल है। वो आपकी इच्छा पे डिपेंड नहीं करता है, वो ऑटोमेटिक, वो अपने आप हो जाता है, ठीक है, वो एक प्रोसेस के तहत होता है, ठीक है। तो फंक्शंस क्या होते हैं बच्चे? ये डिटरमाइन करता है इंटेलिजेंस को, थिंकिंग को, ये थिंकिंग पोर्शन होता है, परसीविंग पोर्शन होता है, ये सेंस परसेप्शन करता है बच्चे। इससे हंगर का पता लगता है, इस पोर्शन की वजह से आपको हंगर का पता लगता है, हंगर की परसेप्शन होती है। प्रोड्यूसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, ये लैंग्वेज भी इसी की वजह से समझते हैं आप। इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इम्पल्सेस। सो दिस इज सम फंक्शंस ऑफ द सेरेब्रम। नाउ बच्चे, फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज टू लिंक द नर्वस सिस्टम टू एंडोक्राइन सिस्टम वाया पिट्यूटरी ग्लैंड। अब बच्चे यहाँ पे ना हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे लोब शेप्ड पिट्यूटरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस क्या करता है? बेसिकली ये नर्वस सिस्टम को लिंक कर रहा है एंडोक्राइन सिस्टम के साथ, ठीक है, and synthesizes and secretes certain neurohormones, and in turn it stimulates or inhibits the secretion of pituitary hormones। तो पिट्यूटरी हॉर्मोन्स की स्क्रीशन, देखो आपके बॉडी के बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है पिट्यूटरी, लेकिन पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है? बहुत हद तक हाइपोथैलेमस उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अब बच्चे, थैलेमस का छोटा सा फंक्शन है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं होता, लेकिन सुनिए, सेंसरी नर्व्स इम्पल्सेस पास थ्रू द थैलेमस ऑन देयर वे टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, कि सेंसरी नर्व्स पास थ्रू करती हैं थैलेमस से। नाउ नेक्स्ट इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन बच्चे छोटा सा पोर्शन है जो आपके फोर ब्रेन को कनेक्ट करता है हाइंड ब्रेन के साथ। और फंक्शन क्या होता है मिड ब्रेन का? वेरियस फंक्शन विच इन्वॉल्व्स controlling of respiratory muscles, controlling the vocal cords, enabling a person to phonate। phonate मतलब audible, कोई पर्सन ऑडिबल हो इसके एबल वो उसको बनाता है, ठीक है, वोकल कॉर्ड्स को कंट्रोल करता है। देन नेक्स्ट इज हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन बच्चे सबसे लोअर पोर्शन होता है। हाइंड ब्रेन के क्या पार्ट्स हैं? पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोगेंटा एंड सेरेबेलम। तो सेरेबेलम से स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है सेरेबेलम इसका। सेरेबेलम को लिटिल ब्रेन भी कह दिया जाता है। एक तरफ ये पूरा ब्रेन और एक तरफ अकेला सेरेबेलम, इसको छोटा ब्रेन भी कहते हैं, लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। इट कंट्रोल्स द मसल मूवमेंट, इट कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन करता है रिफ्लेक्स सेक्शंस के बीच में। इट प्रोवाइड्स रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माइंड। अब बच्चे, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करता है। इक्विलिब्रियम का मतलब बच्चे ये प्रिसिशन देता है, ये आपके डिसीजन को क्लैरिटी देता है। अगर किसी पर्सन का सेरेबेलम डैमेज हो जाता है तो वो एक सीधी लाइन पे नहीं चल पाएगा, किसी भी चीज़ को ग्राउंड से नहीं उठा पाएगा, उसके डिसीजन में क्लैरिटी नहीं होगी बच्चे, प्रिसिशन नहीं होगा। वो किसी चीज़ को उठाएगा, आसपास की चीज़ें, मतलब उसका जो डिसीजन होगा वो ब्लर्ड डिसीजन होगा, उसको क्लियर नहीं पता होगा कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, या वो क्लियर एक लाइन में चल नहीं पाएगा, उसका इक्विलिब्रियम डैमेज हो जाता है। अब बच्चे नेक्स्ट है पॉन्स। और पॉन्स इज अ पोर्शन ऑफ ब्रेन स्टेम। हाँ, ये ब्रेन स्टेम का पोर्शन है बच्चे, लोकेटेड अबव द मेड्यूला ऑब्लोगेंटा एंड बिलो द मिड ब्रेन। एक्चुअली आपका जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपस में कनेक्टेड है, इनको बीच से कनेक्ट करती है ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम भी हाइंड ब्रेन के थोड़े पोर्शन को साथ में ले लेती है। तो पॉन्स नो डाउट हाइंड ब्रेन का पोर्शन है, लेकिन पॉन्स जो पोर्शन है बच्चे, ये ब्रेन स्टेम का भी पोर्शन है, ठीक है।
इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन सेरेबेलम एंड सेरेब्रम। दोनों ही ब्रेन के पार्ट हैं बच्चे। हाँ, ये ब्रिज भी होता है दोनों के बीच का। और फंक्शन क्या होंगे पॉन्स के? पॉन्स आर इन्वॉल्व इन आई मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशन। और पॉन्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइटिंग, च्यूइंग, स्वैलोइंग। इन सब में पॉन्स एड करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट इज मेड्यूला। तो बच्चे मेड्यूला भी एक स्ट्रक्चर होता है ब्रेन का, ब्रेन स्टेम का। हाँ जी, जो ब्रेन स्टेम है आपकी, इस हाइंड ब्रेन के कुछ पोर्शंस को अपने साथ में ले लेती है, पॉन्स को भी ले लेती है, मेड्यूला को भी ले लेती है। द ब्रेन स्टेम बिगिंस जस्ट अबव द स्पाइनल कॉर्ड एंड कंटिन्यूज टू सेंटर द ब्रेन। The brain stem is void of any cerebral functioning but instead controls the lower level functioning. Function क्या होता है मेड्यूला का? मेड्यूला कंट्रोल्स ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। इन सबको कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला। सो spinal cord is the large group of nerves which runs through the center of spine and carries message between the brain and rest of the body. The spinal cord works a bit like telephone switchboard operator, helping the brain communicate with the different parts of body. Its three major roles are: it relays message from the brain to different parts of body, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, और कहाँ पे जाके एंड करता है? यूजुअली मसल पे, क्योंकि मसल क्या होता है? इफेक्टर होता है। इन ऑर्डर टू किसी भी एक्शन को करने के लिए जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है ये मैसेज को ट्रांसफ़र करता है ब्रेन से लेके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक। और क्या करता है बच्चे स्पाइनल कॉर्ड? पास अलोंग मैसेजेस फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर फाउंड ऑल ओवर द बॉडी। आपकी बॉडी में चाहे वो स्किन भी है या कहीं जो भी सेंस ऑर्गन्स हैं वहाँ पे सब सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पे मैसेजेस को पास करता है। एंड इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेट द रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं बच्चे? रिफ्लेक्सेस होते हैं क्विक रिस्पॉन्सेस टू आउटसाइड स्टिमुलाई that don't go through the brain. They are managed by the spinal cord. For example बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कुछ एमरजेंसी कंडीशंस हो जाती हैं, जैसे कि कभी हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लेते हैं, तब उस केस में वो एक एमरजेंसी कंडीशन है। उस केस में जो सेंसरी नर्व है वो मैसेज को पूरा ब्रेन तक नहीं लेके जाती, सीधे स्पाइनल कॉर्ड तक से ही मैसेज वापस आ जाता है। इसी को ही रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। कि आप जब एमरजेंसी कंडीशन होती है, जैसे कि आपको कोई शॉक लग गया या आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया, तो जो आपका सेंसरी नर्व है, आप स्किन क्या है? सेंसरी ऑर्गन है ना, तो स्किन पे ही आपको शॉक लगा, स्किन से सेंसरी नर्व लेके जाएगी स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर नर्व लेके आती है मैसेज इफेक्टर मसल तक। वही स्किन जिसको आप हाथ को पीछे हटा लेते हो, उससे इफेक्टर मसल तक ही लेके आएगी। इसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इसको हम डिटेल में करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसके बाद का सारा पोर्शन हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।